Hello everyone, my name is Brahmavaya Sahu and welcome back to my channel Feel It with Physics। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछले 4 पार्ट्स में हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 1988 से 2025 तक का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन इन प्लेन। तो हम अभी मोशन इन प्लेन का पहला पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 1988 से लेके 1999 तक 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ। एक ट्रेन क्या है? एक ट्रेन है, ए ट्रेन इज गिवन ऑफ 150 मीटर लेंथ, 150 मीटर लेंथ, going towards north direction, going towards north direction. Just like this direction is north, it is going towards north. Okay, at a speed of 10 meter per second. So velocity of train towards north is how much? 10 meter per second, right? Towards north, towards north. A parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south direction, towards south direction. So velocity of parrot is how much? 5 meter per second. In which direction? South direction. Which direction? South direction. Parallel to the railway track, the time taken by the parrot cross the train. Okay. So how much time taken by the parrot to cross the train? Because both train and parrot both are moving. Okay. If I say the train is at rest, if I say the train is at rest, if I say this, then with respect to train, I have to calculate the velocity of the parrot. So VPT equal to velocity of parrot minus velocity of train. Both are moving in opposite direction. तो 10 माइनस 5 कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी आया पैरेट का विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, वो कितना आया? अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 10 मीटर, 150 मीटर। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस है 150 और वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आएगा? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी सी, 3 vectors are given. Magnitude of A is how much given? 3. Magnitude of B is how much given? 4. Magnitude of C is how much given? 5 units. 5 units. All are units. A plus B is given C. A plus B is given C. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसे हम लोग रिजल्टेंट लिखते हैं R इक्वल टू A प्लस बी लिखते हैं ना, तो हम क्या लिखते हैं? रिजल्टेंट R का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अगर स्क्वायर लिख दें तो ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे सी रिजल्टेंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। यस और नो? यस, ओके। सी हाउ मच गिवन? 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 into 3 into 4 cos theta. This is 25, so 25 minus 25 0 means 2 into 3 into 4 cos theta is 0, cos theta is 0. So cos theta we simply write equal to 0, so theta will be 90 degree, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका पाई बाय 2, पाई बाय 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स नॉर्थ, whenever direction is given just draw the direction, north, east, NEWH, follow news, follow news, news means first NESW, NESW, because opposite of north is south, not west. Okay, the bus is moving in the north direction, how much speed? 50 km per hour, 50 km per hour.
So let's take this I cap x direction minus I cap j cap minus j cap. So initial speed is what I can write 50 j cap meter per second. It turns to our left. Left means this direction. In which direction? Turns 90 degree with the same speed. Same speed going. So 50 into minus I cap meter per second. तो बोला है कि इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द बस। देखो इंक्रीज मतलब क्या है कि कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ। स्पीड में कितना चेंज हुआ नहीं बोला है, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? -50 आई कैप -50 जे कैप, -50 आई कैप -50 जे कैप। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा वो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, -50 का स्क्वायर -50 का स्क्वायर, तो कितना होगा 50√2 मतलब 50 इंटू 1.732 अप्रोक्सीमेटली आएगा 70 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्शन क्या है, माइनस है क्या माइनस जे के, आपको पता है ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है, एंड दिस इज योर प्लस माइनस। सो दोनों माइनस है मतलब इस डायरेक्शन में आएगा, वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट और 70। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन सी, फर्स्ट रेंज का फॉर्मूला लिख दो, पहले जब क्वेश्चन पढ़ा गया तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब रेंज मैक्सिमम कब होगा, कब होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज क्या है, वो है यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी। ओके तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज कितना दिया हुआ है 16 किलोमीटर, मतलब 16,000 मीटर, 16,000 मीटर इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। जी कितना दिया हुआ है 10, मतलब स्क्वायर कितना होगा 1,60,000 तो हम लोग यहाँ पे अगर u निकालेंगे तो क्या होगा रूट ऑफ दिस 400 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आया स्पीड ऑफ मजर वेलोसिटी, मजर वेलोसिटी मतलब कितना वेलोसिटी हमने उसको प्रोजेक्ट किया। ओके कितना वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1990 का क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड्स, इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रिक फैन है, मान लो ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे होता है, थोड़ा बड़ा हो गया ये। इसका ब्लेड का जो लेंथ है वो कितना है, मान लेते हैं आर है, 0.3 मीटर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर हो जाएगा। ओके अभी क्या बोला है कि इफ फैन इज रोटेटिंग एट 120 आरपीएम, 120 आरपीएम मतलब जब आपको दिखे आरपीएम, जब आपको दिखे आरपीएस, रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर मिनट, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी। आरपीएस आपका एसआई यूनिट है, आरपीएस आपका एसआई यूनिट है, यहाँ पे मीटर है तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 120 आरपीएम। 130 बार अगर 1 मिनट में घूमता है तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा, डिवाइडेड बाय 60, कितनी बार घूमेगा 2 बार घूमेगा। कितनी बार घूमेगा 2 बार, 2 रोटेशन पर सेकेंड। ठीक एक्सेलरेशन एट द टिप, एक्सेलरेशन हियर। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r और ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा मतलब 2πf का स्क्वायर इंटू आर। 2πf मतलब कितना 4 इंटू पाई स्क्वायर, 3.14 स्क्वायर, एफ स्क्वायर मतलब 4, आर स्क्वायर मतलब 0.3 का स्क्वायर। इसको आप लोग निकालेंगे तो ये आएगा आपका 47.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे होता है। तो ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन आ जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर क्रॉस 0 और मल्टीप्लाई 0। आपको पता है कि कोई भी वेक्टर से हम लोग
मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस करते हैं तो वो एक वेक्टर आता है, वो एक वेक्टर आता है। तो हम लोग इससे जीरो को ये करेंगे तो ये वेक्टर आएगा, एक वेक्टर आएगा, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो, तो जीरो वेक्टर आएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। अगर हम लोग स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं इससे ए से तो ये एम ए आ जाता है, आता ना, बट हम जीरो को कर रहे हैं तो जीरो इंटू ए, तो जीरो ए मतलब जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, डायरेक्शन ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बॉडी ए ऑफ मास एम इज थ्रोन विद वेलोसिटी v एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बॉडी ए को हमने कितना डिग्री पे फेंका, थ्रो किया 30 डिग्री पे, कितना वेलोसिटी से v। बॉडी b को we throw at angle 60 degree with the same velocity with the horizontal. The ratio of horizontal range. The first thing is, what is horizontal range? U square sine 2 theta by g. In both the cases, let's take this is RA, and horizontal range in second case is RB. So v square sine 2 theta in first case by 2g divided by v square is velocity, same in both the cases. Okay, that's why I put same. Sin 2 theta a by sin 2 theta. Sin 2 theta मतलब 2 into 30 डिग्री 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 120 डिग्री, कितना आएगा, √3/2 1:1 आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि दिया हुआ है आपका, ए बोट क्रॉसेस ए रिवर, एक रिवर दिया हुआ है, एक बोट यहाँ पे है, वो क्रॉस कर रहा है रिवर, कितने वेलोसिटी से, 8 किलोमीटर पर आवर से, 8 किलोमीटर पर आवर से। रिजल्टेंट वेलोसिटी दिया हुआ है 10। रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर आवर। पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द रिवर कितना होगा। देखो, एवरीथिंग इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर एंड आस्किंग इन किलोमीटर पर आवर, so don't need to convert to meter per second because okay, अभी बोला है कि क्रॉस किया इसको, तो हम मानेंगे कि ये परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहा है भी बी से, यहाँ पे लिखा नहीं है ओके, बट क्रॉसेस द रिवर ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ओके, अभी आपको पता है कि वी आर और वी बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो नेट जो आएगा वो आएगा कितना, वी आर स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर इक्वल टू वी बी आर स्क्वायर। ये दिया हुआ है 10 स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो वी आर आपका आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि दिया हुआ है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। जब भी हम लोग एंगल निकालते हैं तो हम क्या कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड। ओके, कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी निकाल लेते हैं, ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी आपको पता है कि ए डॉट बी हम कैसे निकालते हैं, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ प्रोडक्ट होंगे, क्या होंगे, प्रोडक्ट। तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे 3 तो 9, जे कैप का कोफिशिएंट 4, यहाँ पे भी 4, 4 इंटू 4 16, एफ 5 इंटू 5 -25, तो ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, मतलब सिंपली कॉस थीटा हो गया जीरो डिवाइडेड बाय ए डॉट ए और बी का मैग्नीट्यूड, तो जीरो हो जाएगा सिंपली। तो कॉस कितना जीरो होता है, कॉस 90 डिग्री जो होता है वो जीरो होता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंगुलर स्पीड
पूछा गया है, क्या पूछा गया है? एंगुलर स्पीड। देखो ये हाईलाइटेड जो मैंने किया है दूसरे कलर से, ये मेन पॉइंट्स हैं जो है, ओके, मेन थिंग्स है। तो एक फ्लाईव्हील है जो 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। आपको पता है कि मिनट जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट नहीं है, तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं जो कि ऐसा यूनिट है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाय 60 आरपीएस। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 2 आरपीएस। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, क्या निकालने के लिए बोला है? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। क्या होता है? 2 पाई एफ। तो 2 पाई इंटू 4 तो हो जाएगा 4 पाई। यूनिट क्या है इसका? रेडियन पर सेकंड है इसका यूनिट, रेडियन पर सेकंड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। मतलब कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहले वेलोसिटी वेक्टर पूछा है, तो वेलोसिटी वेक्टर पहले निकालते हैं। क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ आर होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप, क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है। डेरिवेटिव आपको पता है, डेरिवेटिव आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आएगा फिजिक्स में। ओके, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ओके, देखो ऑप्शन ए डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, डायरेक्टेड ए हुए। देखो ओरिजिन की तरफ है, मतलब क्या है? रेडियस वेक्टर के पैरेलल है। ओरिजिन से बाहर है, मतलब रेडियस वेक्टर के एंटी पैरेलल है। ओरिजिन जो होता है, अगर ये सर्कल है तो ओरिजिन ऐसा होता है ना, ये आर वेक्टर, आर वेक्टर आउटवर्ड होता है। ओके, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर इसके पैरेलल होगा तो वो पैरेलल हो जाएगा पोजीशन वेक्टर के। अभी कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? हम निकालते हैं डॉट। हम क्या निकालते हैं? डॉट, वी डॉट आर करते हैं, वी डॉट आर करते हैं। वी डॉट आर करेंगे तो क्या होगा बताइए? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप डॉट ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। दोनों सेम है, जीरो हो जाएगा। मतलब अगर डॉट पर जीरो हो जाता है, मतलब क्या है? मतलब क्या है? वी आर कॉस थीटा है जीरो, मतलब कॉस थीटा हो गया जीरो, क्योंकि वी और आर तो जीरो है नहीं, नहीं होंगे जीरो। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। मतलब वी और आर के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 है। मतलब अगर ये वेलोसिटी आर वेक्टर होता है तो वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है आर के, तो परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बॉडी इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में वन बॉडी इज रिवॉल्विंग। रेडियस क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है आपका कितना? रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को हम लोग ऐसा यूनिट में लिखेंगे, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ओके, अभी बोला गया है कि एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड, जो पार्टिकल यहाँ पे रोटेट कर रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। लीनियर वेलोसिटी पूछा गया है कि क्या होगा यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी भाई साहब? ओमेगा क्या होता है? v इक्वल टू ओमेगा आर होता है।
v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो 10 इंटू 0.2 कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड होता है यूनिट इसका। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये डायरेक्शन नहीं लेते हैं। हीट इज स्केलर क्वांटिटी, जैसे हम हीट बोलते हैं, एनर्जी जूल। एनर्जी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, दिस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। आपको पता है मोमेंटम एम भी होता है, भी वेक्टर क्वांटिटी है, सो एम भी पी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम इन रोटेशन, मोमेंटम इन रोटेशन और सर्कुलर मोशन, तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास 0.25 kg, ए बॉल इज गिवन ऑफ मास 0.25 kg, mass of the ball is given, is connected to a end of a string of length 1. Let's say length is 1.96 meter, moving in a horizontal circle, moving in a horizontal circle. The string will break if the tension is more than 25. So टेंशन मैक्सिमम क्या है बोला है? 25 न्यूटन अगर टेंशन हो जाएगा स्ट्रिंग में, टेंशन अगर ज़्यादा हो जाएगा 25 न्यूटन से, तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो आप इस बॉडी को देखिए, इस बॉडी में टेंशन दे कौन रहा है? सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स इधर टेंशन दे रहा है। तो मैक्सिमम जो सेंटीपिटल फोर्स होना चाहिए वो टेंशन मैक्सिमम होना चाहिए। टेंशन सेंटीपिटल फोर्स होता क्या है? एम बी स्क्वायर बाय आर, एम बी स्क्वायर बाय आर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि एम और आर तो दोनों सेम हैं, तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना मैक्सिमम टेंशन होगा। तो इस पर्टिकुलर टेंशन के लिए कितना वेलोसिटी मैक्सिमम होना पड़ेगा? तो वी मैक्स क्या होगा? आर इंटू टी मैक्स बाय एम, टी मैक्स बाय एम। तो कितना आएगा ये? वी मैक्स निकालेंगे तो आर कितना दिया हुआ है? 1.96 इंटू 25 बाय कितना? 0.25 रूट। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ओके, कैलकुलेट कर लिए, 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, टू पार्टिकल्स ए एंड बी। ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है वो है आपका ए। ये क्या है? ए है। ये पार्टिकल बी है, पार्टिकल बी है। इट इज कनेक्टेड टू ए रिजिड रॉड ए बी। ए बी जो है वो रिजिड रॉड है। द रॉड स्लाइड्स अलोंग ए परपेंडिकुलर रेल्स एट सोन। रॉड ऐसे स्लाइड करेगा, रॉड स्लाइड करेगा तो ये तो ऊपर जा रहा है, तो ये बॉडी किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, ओके। ए का जो वेलोसिटी है वो कितना है? वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी पूछा है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। इस केस में हम निकालेंगे कैसे? एक पॉइंट लिखिए, ऑलवेज टेक कंपोनेंट ऑफ रियल वेलोसिटी। रियल वेलोसिटी का मतलब क्या है? कि बॉडी जहां पे जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसको हम रियल वेलोसिटी लेते हैं। जैसे कि बॉडी ये इधर जा रहा है, तो इसका अगर इस डायरेक्शन में हम लोग कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा? वी ए कॉस अल्फा हो जाएगा, वी ए कॉस अल्फा हो जाएगा। इसमें बॉडी किधर जा रहा है? ऊपर, तो वी भी है ऊपर, तो इस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकालेंगे तो कंपोनेंट ये वाला एंगल क्या है? 90 माइनस अल्फा। तो ये अगर वी बी है तो इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा? वी बी कॉस 90 माइनस अल्फा। तो एक ही रॉड है तो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो वी बी कॉस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू वी ए कॉस अल्फा।
तो वी बी इंटू साइन अल्फा इक्वल टू वी ए कॉस अल्फा। तो वी बी कितना होगा भाई साहब? वी ए कॉट अल्फा, कॉट अल्फा। अभी वी बी जो होगा वो क्या होगा? वी ए कॉट अल्फा, वी ए मतलब कितना है? 10, कॉट अल्फा मतलब कॉस 60, 1/√। तो 10/1.732, इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5.8 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन दिस क्वेश्चन linear velocity is given, what is the value of linear velocity? r and omega are given, r and omega are given। तो आपको पता है कि linear velocity जो होता है v, वो होता है आपका, क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर होता है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड आर, ओमेगा एंड आर। तो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? पहले हम लोग लिखते हैं प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। पहले कौन सा है? ओमेगा है, तो ओमेगा लिखो पहले 5 माइनस 6 प्लस 6, देन 3 माइनस 4 1। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो आई कैप हो जाएगा -6 इंटू 1 माइनस 6 इंटू -4, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। तो 5 इंटू 1 -3 इंटू 6 प्लस के कैप 5 इंटू -4 -3 इंटू -6। अब इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा? आंसर आएगा 18 आई कैप प्लस 13 जे कैप -2 के कैप। तो आपका वेलोसिटी जो आ जाएगा वो कौन सा आएगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं वेक्टर प्रोडक्ट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। यूनिट वेक्टर क्या होता है? क्या होता है यूनिट वेक्टर? पहले उसको जानते हैं। पहले हमने एक टर्म्स देखा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है, ये एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। किसी भी वेक्टर दिया हुआ है ए, मान लो कोई वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है कि जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट स्क्वायर, z का कोफिशिएंट स्क्वायर। तो ये तरीका है निकालने का। अब एक वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 आई कैप 0.68 जे कैप सी कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 1 इक्वल टू, मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर का, 1 इक्वल टू 0.5 स्क्वायर प्लस माइनस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वो 1 इक्वल टू 0.5 मतलब 0.25 0.64 प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर आपका आ जाएगा 1 माइनस 0.89। सी आपका आ जाएगा 0.11। सो सी आ जाएगा रूट ऑफ 0.11। तो सी का वैल्यू कितना आ गया? बी आएगा 0.11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू रेसिंग कार्स of masses m1 and m2 moving in a circle, moving in two circle। दो कार है जो 2 सर्कल में रोटेट कर रहा है। एक जो रोटेट कर रहा है उसका मास कितना है? m1 है। दूसरे का मास कितना है? m2 है। इसका रेडियस कितना है? r1 है। इसका रेडियस r2 है। द स्पीड्स आर सच दैट ईच मेक्स ए कंप्लीट सर्कल इन द सेम टाइम t। देखो, कंप्लीट सर्कल जब करता है, जितना टाइम उसको लगता है पार्टिकल को और बॉडी को, वो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब दोनों का, एक का टाइम पीरियड t1 है, एक का टाइम पीरियड t2 है। दोनों क्या है? सेम है। दोनों सेम है। कैपिटल टी ले लेते हैं।
वो क्या है, सेम है और वो टी है। बोला गया है कि एंगुलर स्पीड का रेशियो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड। मान लेते हैं इसमें एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 है, इसमें ओमेगा 2। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। सो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय T1 बाय 2 पाई बाय T2। 2 पाई कैंसिल, T2 बाय T1। अभी बोथ तो सेम है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1:1। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 1:1। एंगुलर स्पीड का जब रेशियो, अगर दो सर्कल है, दोनों में पार्टिकल मूव कर रहा है और दोनों का जो है वो सेम टाइम पीरियड है, तो उनका जो रेशियो होगा एंगुलर स्पीड का वो सेम हो जाएगा, 1:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ ए स्ट्रीम इन विच स्विमिंग विद स्पीड ऑफ 0.5। देखो, एक रिवर है, तो वाटर तो ऐसे ट्रैवल करेगा वीआर से। एक one person want to travel exactly opposite point, so he must go like this. So due to the flow of water he will turn, okay। कितना स्पीड से, 0 पॉइंट, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या होगा, 0.5 मीटर पर सेकंड। एंगल कितना है, एंगल विद द फ्लो दिया हुआ है 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो थीटा हम लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ से ही लेते हैं, ये थीटा लेते हैं ना हम लोग। तो ये वाला डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा, डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा, मतलब इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी 0 होना चाहिए। अब इसका कंपाउंड इधर लेंगे तो Vp साइन 30 आ जाएगा, जो कि इक्वल होना चाहिए Vr से, Vr के इक्वल होना चाहिए। तो Vr कितना आएगा, Vp साइन 30, Vp कितना है 0.5, साइन 30 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4। सो आपका आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द वाटर और स्पीड ऑफ द रिवर वो कितना आएगा, 0.25 मीटर पर सेकेंड। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ए दिया हुआ है। ये 500 kg कार है, एक कार है जिसका वेट कितना है, वेट नहीं है, मास है, कितना दिया हुआ है 500 kg, मास दिया हुआ है 500 kg। रेडियस कितना दिया हुआ है, जिस रेडियस में ट्रैवल कर रहा है वो रेडियस है 50 मीटर विथ वेलोसिटी ऑफ 36। देखो ये मीटर में दिया हुआ है, तो SI वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट कर लो SI से। कन्वर्जन आप जब क्वेश्चन देखो आपके मन में कन्वर्जन ऑटोमेटिकली होना चाहिए। 36 इंटू 5/80, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। कितना होगा, m कितना है 500, 100² 50, 50 कैंसिल, 10 हो जाएगा 1000 न्यूटन। तो जब ट्रैवल करेगा कार सर्कल में ऑफ रेडियस 50 मीटर विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 1000 न्यूटन। तो ये था आपका पार्ट 1 ऑफ मोशन इन ए प्लेन। तो इसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को फॉलो कर दीजिए फ्यूचर वीडियोस के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले चला जाए, ओके। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।